हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरोज चौधरी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर में एज अ लेक्चरर कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसी इंजन्स। आईसी इंजन्स में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन्स इज। आईसी इंजन्स में कंप्रेशन रेशियो को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है the ratio of volumes of air in cylinder before compression stroke and after compression stroke. B है volume displaced by piston per stroke and clearance volume in cylinder. C है ratio of pressure after compression and before compression. D है swept volume divided by cylinder volume. बेसिकली हमारा कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो है रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जिसको हम अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। और यहाँ पे जो आंसर है वो है हमारा ए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन सिलेंडर before compression stroke and after compression stroke. Second question है, for the same compression ratio which of the following is true? A है auto cycle is more efficient than the diesel. B, diesel cycle is more efficient than auto. C, both auto and diesel cycles are equally efficient. D, compression ratio has nothing to do with efficiency. इसमें हमारा आंसर है ए। क्यों है ए आंसर? why auto cycle is more efficient than diesel cycle? Because the area under the PV diagram in auto cycle is larger in comparison to diesel cycle. This is because heat addition in auto cycle, heat addition is being done at constant volume, which is being analogous to the heat being added at TDC compression. While in diesel engine, heat addition is done at the heat addition is done at constant pressure, which is being analogous to the heat being added while the piston is moving down in the expansion stroke. So some of the potential heat energy of the is not fully utilized in the expansion stroke in a diesel engine. That's why auto cycle is more efficient for same compression ratio. Third question है, the air standard efficiency of an IC engine is given by. किन टर्म्स में चाहिए? आर कंप्रेशन रेशियो, दैट इज जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक, एंड गामा दैट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। स्पेसिफिक हीट्स क्या क्या है यहाँ पे? CP दैट इज specific heat for gases in a constant pressure process, and CV specific heat for gases in a constant volume process. और गामा को हम CP एंड CV में कैसे लिखते हैं? CP अपॉन CV। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं A 1 माइनस R raised to gamma minus 1, B 1 plus R raised to gamma minus 1, C 1 minus ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई R raised to gamma minus 1, और D है none of these। तो इसमें हमारा आंसर है C 1 माइनस ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई R raised to gamma minus 1। फोर्थ है, इन अ टिपिकल मीडियम speed 4 stroke
cycle diesel engine, the inlet valve. ऑप्शन है opens at 20 degree before TDC and closes at 35 degree after the BDC. B. Opens at TDC and closes at BDC. C. Opens at 10 degree after TDC and closes 20 degree before the BDC. D. May open or close anywhere. Answer है A, which is open at 20 degree before TDC and closes at 35 degree after the bottom BDC. Next question है the operation of forcing additional air under pressure into the engine cylinder is known as. फर्स्ट ऑप्शन है सुपरचार्जिंग, सेकंड ऑप्शन है कार्बोरेशन, थर्ड ऑप्शन है टर्बुलेंस, डी है डिले पीरियड. आंसर है ए, सुपरचार्जिंग. अभी बेसिकली सुपरचार्जिंग होता क्या है? सुपरचार्जिंग इज डन बाय सुपरचार्जर. और सुपरचार्जर क्या होता है? इट इज़ एन एयर कंप्रेसर that increases the pressure or density of air which is applied to an internal combustion engine. Okay, और इससे क्या मिलता है फिर? It gives each intake cycle of the engine more oxygen, जिसकी वजह से हमें more fuel burn होता है और more work होता है, which tends to raise the power of the engine. तो इसका आंसर क्या है? ए, सुपरचार्जिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6-1. पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सुपरचार्जिंग. इससे पहले भी सुपरचार्जिंग का क्वेश्चन था, तो अब ये है. इसमें ऑप्शंस है ए, सुपरचार्जिंग रिड्यूसेस नॉकिंग इन डीजल इंजन्स. बी, देयर कैन बी लिमिटेड सुपरचार्जिंग इन पेट्रोल इंजन्स बिकॉज ऑफ डेटोनेशन. C. Supercharging at high altitudes is essential. D. Supercharging results in fuel economy. पहला ऑप्शन है ये सही है. सुपरचार्जिंग रिड्यूस करता है नॉकिंग इन डीजल इंजन. नॉकिंग इज अनडिजायरेबल इन डीजल इंजन. बी है देयर कैन बी लिमिटेड सुपरचार्जिंग इन पेट्रोल इंजन्स. ये भी सही है. अगर लिमिटेड नहीं होगा तो इट मे cause detonation in petrol engines, which is also an undesirable thing in petrol engines. C. Supercharging at high altitudes is essential. ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ हाई एल्टीट्यूड्स पे वहीं पे हो, सिर्फ ये लो एल्टीट्यूड्स पे भी हो सकता है. तो हमारा आंसर है सी, जो कि गलत है. डी जो है सुपरचार्जिंग रिजल्ट इन फ्यूल इकोनॉमी, ये सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीज़न फॉर सुपरचार्जिंग इन एनी इंजन इज टू. पहला है इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज पावर. थर्ड है रिड्यूस वेट एंड बल्क फॉर गिवन आउटपुट. डी इफेक्ट फ्यूल इकोनॉमी. तो बेस्ट पॉसिबल इसमें से आंसर है हमारा सी. क्यों हम यूज़ करते हैं सुपरचार्जिंग? मेन हमारा जो इंजन का जो वेट है और बल्क है कि पर्टिकुलर गिवन आउटपुट के लिए वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन पिस्टन्स आर यूजुअली मेड ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय बिकॉज इट इज लाइटर, वेयर इज लेस, एब्जॉर्ब्स शॉक, इज स्ट्रॉन्गर. इसका आंसर है ए, बिकॉज इट इज लाइटर वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th. द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर इज कॉल्ड. ये फॉर्मूला है मैकेनिकल एफिशिएंसी का. मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर. सो आंसर इज ए. 10th क्वेश्चन है द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ अ पेट्रोल इंजन कंपेयर टू डीजल इंजन ऑफ सेम हॉर्स पावर. इसमें ही पूछा गया है. ऑप्शंस हैं ए सेम, बी मोर, सी लेस और डी लेस और मोर डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटिंग कंडीशंस. आंसर है इसका बी.
स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पेट्रोल इंजन में ज़्यादा होता है, और ये होता क्या है, it is the amount of fuel consumed by a vehicle for each unit of power output. यूनिट पावर आउटपुट के लिए जो फ्यूल कंजम्पशन होता है वो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है, तो ये पेट्रोल इंजन में ज़्यादा होता है। ये था 10 क्वेश्चंस थे आईसी इंजन्स पे जो हमने पढ़े। थैंक यू स्टूडेंट्स।